let us start our new point of complex number, that is the exercise 1.1. In last two videos we already studied all the basics related to complex number, in that properties of complex number, definition, algebraic properties मतलब addition of two complex number, subtraction of two complex number, multiplication of two complex number or division of two complex number, how to find, as well as the definition, complex number, the conjugate of complex number, then the product of complex number with its conjugate, what we get the value. Then in next, that is the power of complex number, what is the power of I square, I cube, I raised to power 4. All this value we have already studied in last two videos. Then by using all this result, we have to solve the example depending on 1.1. Then before this, starting the exercise question, first see for this important result, that is the complex number z is denoted by a plus ib, and when we find its conjugate, then its conjugate मतलब we have to change the sign of imaginary part. तो z bar क्या आता है, a minus ib होता है. And when we take the product of complex number with its conjugate, मतलब z into z bar, when we find the product of complex number with its conjugate, we use this result directly. Okay, instead of taking the multiplication, we directly use the result. The product of complex number with its conjugate is a real number square, मतलब a square plus b square होता है. ठीक है, we directly use the result for solving the example. The next day I की जो value होती है वो क्या होती है, रूट ऑफ -1 होती है, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस है, एंड आई रेज़ टू 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ओके, वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट. देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Then the question number 1, first example is that in that this simplify, first one is simplify. The square root of -16 plus 3 into square root of -25 plus square root of -36 minus times square root of -625. Then we know that if there exists a square root minus signs here, when -1, we write this -1 मतलब we write in the form of I square. I square की वैल्यू क्या होती है, -1. तो square root of I square, when we take square root of I square, then this as I. Okay, the square root of I square क्या है, I. Then we use this result here to find the square root of each term. Then the given example is minus times square root of 16, मतलब we write this as -1 into 16. तो next term क्या है, 3 into square root of -25 है ना, तो -1 into 25 plus next is we write this as -1 into 36. Next minus time we write this as -1 into 625, and if you observe, each term is a square term. That is 16 is 4 square, 25 is 5 square, 36 is 6 square, 625 is 25 square, and this -1 की जगह क्या राइट करेंगे, I square. ठीक है, तो -1 रूट ऑफ -1 मतलब क्या है, I square. That is we find the easily square root. तो I square into this 16 प्लस टाइम क्या होगा, 3 into I square into 25 प्लस टाइम this next term is I square into 36 plus time, next term here is minus time, that is a minus of I square into 625, and then take the square root of each term. So for 16 का square root is 4, I square का I, that is 4I plus 3 into क्या होगा, 5 square, 25 is a 5, and I square का I plus this has I into 6 minus this has minus 10, this I square का I, and this has 25. Then when we take the addition, that means 4 plus this has 4I plus this has 15I plus 6I minus 25I, and if we take the addition, this has our plus 25I and this has minus 25I, तो क्या होगा, plus 25I minus 25I is equal to 0. So simplification of first one example is 0. And then for next one example, same thing is given, 4 into root of -4, 5 into root of -9, -3 into root of -16. Okay, तो simplify करेंगे, apply the same thing result apply करना है as a last one example. तो directly write करते हैं, ये क्या होगा, -1 into 4, next क्या होगा, 5 into this is, next is 5 into -1 into 9, next is -3 into -1 into 16. ठीक है, तो -1 मतलब क्या है, I square है, तो I square के फॉर्म में राइट करते हैं. then I square into this as 4, next term क्या है, 5 into
I square into 9. Next is minus 3 into, this is minus 3 into I square into 16. Okay. Then take the square root of each term. तो स्क्वायर रूट क्या होगा? दिस 4 इंटू दिस I स्क्वायर का I एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 2I. नेक्स्ट क्या है? प्लस 5 सेम थिंग I स्क्वायर का है 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 मतलब 3I माइनस 3 इंटू क्या है? I स्क्वायर का I एंड 16 का 4 तो 4I हो जाएगा. ठीक है. तो सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या होगा? 8I प्लस 15I minus 12I. Then take the addition. This 15I minus 12I, the remaining is 3. Then 3I plus 8I, that is 11I. Okay. Then in this way, that is our example question first. All these examples are depending on this. That is, we have to simplify the result. In that, we have to use the result if the square root term is there and again there is a minus sign. Then minus sign की जगह क्या लिखना है आपको? I square लिखना है. And ये जो next term है उसका square root लिखना है. ठीक है? In this way, we solve the examples. Then we start the next question. That is question number 2. Then the question number 2 is that write the conjugate. तो conjugate कैसे write करते हैं? If z is equal to a plus ib, then its conjugate z bar is, that is change the sign of imaginary part only, means a minus ib is the conjugate of a plus ib. And if z is equal to a minus ib, तो इसका conjugate क्या होगा? प्लस टाइम मतलब a प्लस ib. प्लस का माइनस करना है और माइनस का प्लस करना है. दैट इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट. एंड चेंज द साइन ऑफ विच वन? इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का प्लस साइन माइनस एंड माइनस का प्लस. तो यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट वन 3 प्लस I. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? I. तो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका क्या चेंज होगा? माइनस होगा. मतलब 3 माइनस I is the conjugate. तो समथिंग नेक्स्ट क्या है? 3 माइनस I is given. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस गिवन है तो कॉन्जुगेट प्लस होगा. मतलब 3 प्लस I. जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, नॉट रियल पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है किसका? इमेजिनरी पार्ट का. देन नेक्स्ट क्या है? थर्ड. यहाँ पे रियल पार्ट माइनस रूट 5 है एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस टाइम रूट ऑफ 7 है. तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो इसका कॉन्जुगेट जो है माइनस टाइम रूट ऑफ 5 प्लस टाइम रूट ऑफ 7 इज द कॉन्जुगेट. देन same thing you can write the conjugate of any number. Just change the sign of imaginary part. If given is positive, then the conjugate is negative, and if given is negative, then conjugate क्या होगा? Positive होगा. Then next one, question third क्या है? Find AB. तो यहाँ पे जो given complex number है, which is in the form of real part plus imaginary part के form में, and next is given 4 plus 6 है. तो यहाँ पे A and B की value determine करनी है. We have to find the value of AB. Or to find for that we compare this real part and this imaginary part with this 4 plus 6 है. कंपेयर करना है एंड AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो से यार कंपेयर करते हैं. कंपेयर रियल से रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड्स. तो फर्स्ट फॉर दी लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है? a plus 2b. ओके, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस इज a plus 2b एंड हियर रियल पार्ट क्या है? 4 है. तो a plus 2b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड का टॉइस है एंड राइट हैंड का क्या है? 6 है. ओके, इमेजिनरी पार्ट मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? I होता है. ठीक है. देन फॉर दी नेक्स्ट इज कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट इज टॉइस है एंड हियर इमेजिनरी पार्ट इज 6, तो इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए, दैट इज हियर डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू फॉर a. अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3. मतलब वी गेट वैल्यू फॉर a एज 3. देन सबट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a, दैट इज व्हाट वी विल फाइंड. a की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 सबट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. a की वैल्यू सबट्यूट करते हैं. 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रांसफर करेंगे 3 को राइट साइड ला, राइट साइड को, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा. तो 2b इज इक्वल टू क्या? दिस 2b इज इक्वल टू 1. देन 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/2. दैट मीन्स हियर वी गेट द वैल्यू फॉर a एज 3 एंड b एज 1/2 इज द वैल्यू फॉर ab. देन सेकंड क्या है? a माइनस b प्लस a प्लस b इंटू i इज इक्वल टू a प्लस y. समथिंग एज लास्ट वन सी, समथिंग एज लास्ट वन एग्जाम्पल. कंपेयर करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड का. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट
कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके, ऑफ बोथ साइड्स। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, a माइनस बी, राइट हैंड को रियल पार्ट क्या है a, एंड देन इमेजिनरी पार्ट क्या है a प्लस बी, राइट हैंड को क्या है 5a। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आइदर डायरेक्टली ट्रांसफर दिस a टू राइट हैंड एंड देन वी गेट वैल्यू फॉर b, और दोनों की एडिशन लेकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू ट्रांसफर दिस a टू राइट हैंड तो क्या होगा, माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, दिस वी गेट b एज अ 0। तो सेम थिंग यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज a प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0। दैट इज जस्ट कंपेयर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वी गेट वैल्यू फॉर a एंड b, और समटाइम्स यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज सेम थिंग एज लास्ट वन एग्जांपल की। तो a plus b into is given, मतलब first take product of these two element, okay, and then compare the real and imaginary part। तो पहले प्रोडक्ट लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a एंड b को, तो 2a प्लस 2b प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i टाइम्स a प्लस b, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या है रियल पार्ट b प्लस 1a एंड इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू हो क्या है 10 प्लस ट्वाइस a, ओके। देन कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट टू फाइंड ए बी, फाइंड आउट करना है, तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड का। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 2a प्लस 2b, देन यहाँ पे रियल पार्ट क्या है b प्लस 1, देन इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट क्या है 10 प्लस ट्वाइस b, ठीक है। तो first if you transfer this b to the left hand, then what we get, this as 2a plus 2b minus b is equal to 1, मतलब 2a plus b is equal to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2a अगर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, समथिंग एज दिस a minus 2a plus b is equal to 10, मतलब क्या माइनस a plus this as b is equal to 10. Okay, these are equation second and these are equation first. Then we solve this two equation. दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू 1a, और सेकंड क्या है माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10a। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वी आर सॉल्व, और टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज आइदर वी टेक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट हियर twice a is positive and here a is negative, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है such that this 2a and minus 2a get cancel। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज 2a plus 1 is equal to b। सेकंड इक्वेशन क्या चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर एडिंग ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या होगा 3b इज इक्वल टू 21, तो 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो b की वैल्यू क्या होगी 7, तो हमें b की वैल्यू मिली है। देन सब्स्टिट्यूट दिस b की वैल्यू कौन से भी एनी वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। पुट सपोज कंसीडर दिस इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 1, मतलब 7 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड को तो 1 माइनस 7 मतलब माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या होगी -3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज -3 एंड b इज 7। इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। a b इज अ रियल नंबर, i की वैल्यू रूट ऑफ -1 है, तो स्टेट करिए वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इन द फॉर्म ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट एंड a b की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस ib के फॉर्म में, मतलब रियल पार्ट प्लस i टाइम इमेजिनरी पार्ट। फॉर दैट वी हैव टू टेक अ मल्टीप्लिकेशन,
two complex number is given, दो complex number दिए, take complex multiplication between two complex number. तो complex multiplication कैसे देते हैं? मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन माइनस दिस प्लस 2i से मल्टीप्लाई करना है. तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू दिस 1 इंटू माइनस 2 प्लस आई, सेकंड क्या है प्लस 2i इंटू माइनस 2 प्लस आई. ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2 प्लस आई, फिर क्या होगा माइनस 4i, then this as plus 2 into I square. Okay, तो this as minus 2 minus 4i plus I क्या होगा minus 3i, and this plus 2 I square की वैल्यू क्या होगी minus 1, मतलब this as minus 2. तो सिंप्लीफाइड टर्म क्या होगी minus 2 मतलब minus 4 minus 3i. तो कंपेयर करेंगे विथ a प्लस आई बी के फॉर्म में आए ना, तो कंपेयर करेंगे विथ a प्लस आई बी. तो रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है -4 है, एंड b की वैल्यू क्या है -3, मीन्स a एज -4, b एज -3. तो समथिंग नेक्स्ट वन एग्जांपल को भी एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई रेस्ट टू -1 है, तो डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस आई. ठीक है, रेस्ट टू -1 है, तो फर्स्ट वी टेक दिस टर्म एट द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस आई, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई. ओके, रेस्ट टू -1, if we know that 1 upon x is there, तो we write x raised to -1, तो डिनोमिनेटर में लेंगे फर्स्ट, मतलब 1 माइनस आई. देन नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी नो दैट क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें वो रियल नंबर में फर्स्ट कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इट्स कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, सच दैट अगेन वी गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. दैट इज सेम टॉपिक वी आर स्टडी इन द डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में. तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आई का 1 प्लस आई. ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स एट डिनोमिनेटर तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू रियल नंबर. तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट से. अगेन the next property of complex number, the product of complex number and its conjugate क्या होता है रियल नंबर स्क्वायर होता है. मतलब यार रियल नंबर इज ए बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट है ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज दैट इज इट्स रियल नंबर स्क्वायर. तो a इज 1 एंड b इज 1, मतलब 1 स्क्वायर प्लस दिस एज b is also 1 square, and numerator में क्या होगा 1 plus i into 1 plus i, मतलब 1 plus i square. ओके, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 2a. न्यूमरेटर में a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2i प्लस i स्क्वायर मतलब -1. तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गए, 2i डिवाइडेड बाई 2i डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या i. तो एक्सप्रेस करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो 0 प्लस i टाइम्स. ओके, दैट इज i टाइम्स 1, i का कोएफिशिएंट क्या होगा 1. तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0 एंड b की वैल्यू क्या है, b का कोएफिशिएंट इज i, i का दैट इज हियर i का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या है 1. तो वी आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड 1 माइनस आई. इसको भी हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a एंड b की वैल्यू राइट करनी है. तो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई दिस, जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको कन्वर्ट करना है रियल नंबर में. उसके लिए क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है. ऑलवेज रिमेंबर इफ कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर कन्वर्ट इट टू रियल नंबर, फॉर दैट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इट्स कॉन्जुगेट. तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ये आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i एंड दिस प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इंटू 1 प्लस आई. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज रियल नंबर स्क्वायर. तो यहाँ पे रियल नंबर a क्या है 1 है, b इज 1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सेम थिंग a इज 1 b इज 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2 होती है. ओके, डायरेक्टली राइट हियर. देन यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 मतलब -3 इज दिया. तो दैट मीन्स दिस 4i -3 इंटू
1 प्लस आई, डिनोमिनेटर में क्या है 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4i से 1 प्लस आई को एंड माइनस 3 से अगेन 1 प्लस आई को, तो क्या होगा दिस 1/2 वी टेक इट आउटसाइड कांस्टेंट टर्म माइनस दिस 4i इंटू 1 प्लस आई मतलब 4i इंटू 1 प्लस आई माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई को देन सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा 4i एंड दिस 4 से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू आई स्क्वायर मतलब क्या -1 तो ये फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/2 इंटू 4i दिस 4i से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू आई स्क्वायर क्या होता है माइनस मतलब क्या है -4 ओके नेक्स्ट टर्म क्या होगी -3 नेक्स्ट क्या होगी -3i तो एडिशन लेंगे तो 1/2 टाइम दिस रियल नंबर -4 -3 मतलब -7 एंड इमेजिनरी नंबर की वैल्यू क्या है 4i - 3i मतलब i प्लस i तो राइट इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस ib के फॉर्म में राइट करेंगे तो -7/2 प्लस i टाइम्स 1/2 तो कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ a प्लस ib के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू रियल पार्ट की क्या है -7/2 एंड b की क्या है 1/2 तो a इज इक्वल टू -7/2 एंड b की वैल्यू क्या है 1/2 विच इज द वैल्यू ऑफ ab तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है शो दैट कर रहे हैं -1 प्लस √3i का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं एंड वी हैव टू शो दैट द -1 प्लस √3i का जो क्यूब है विच इज अ रियल नंबर तो रियल नंबर मतलब क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ओनली रियल पार्ट एग्जिस्ट ओके तो वी शो दैट दिस रिजल्ट क्या है गिवन -1 प्लस √3i क्यूब तो एक्सप्रेस दिस और फाइंड द क्यूब ऑफ दिस वी यूज दिस फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a की जो वैल्यू क्या है -1 एंड b की वैल्यू क्या है √3i तो a क्यूब क्या होगा -1 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर इंटू b मतलब √3i प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर मतलब √3 इंटू i स्क्वायर नेक्स्ट टर्म क्या है √3i क्यूब b क्यूब मतलब √3i क्यूब तो सिंप्लीफाई करते हैं -1 क्यूब निगेटिव होगा माइनस देन दिस माइनस स्क्वायर मतलब पॉजिटिव तो ये 3 इंटू प्लस 3 √3i हो जाएगा देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी दिस 3 माइनस 3 i स्क्वायर माइनस एंड √3 स्क्वायर 3 मतलब दिस -3 एंड दिस -3 3 इंटू 3 9 प्लस 9 नेक्स्ट दिस क्यूब √3i क्यूब की वैल्यू क्या होगी i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i मतलब i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस इंटू आई माइनस आई एंड दिस √3 क्यूब मतलब √3 क्यूब मतलब क्या है √3 क्यूब मतलब √3 square into √3 that is √3 square is 3 into √3 and this minus i मतलब क्या होगा माइनस टाइम this 3 √3 तो कैंसिल आउट करते हैं this and this get cancelled -1 plus 9 क्या होगा 8 and which is a real number because its imaginary part is 0 तो we get a simplification of this as a real number यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज किया जस्ट यूज द रिजल्ट a प्लस बी क्यूब का रिजल्ट यूज करना है एंड देन वी गेट दिस एज अ रियल नंबर ओनली मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन i इंटू i⁻6 माइनस i⁻7 इंटू 1 प्लस i⁻11 को सिंप्लीफाई करना है इसके लिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है i⁻ दैट इज पावर ऑफ i i⁻ क्या होता है i स्क्वायर -1 i क्यूब माइनस i⁻4 की वैल्यू 1 होती है तो वी यूज दिस पावर वी यूज दिस सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज व्हेन दिस पावर ऑफ n मतलब i⁻n इज ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन है तो क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड करते हैं एंड देन जो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 होता है मतलब i⁻n है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो i⁻4m
प्लस आर, तो ये जो टर्म है आई रेस टू 4 रेस टू पावर यम इंटू आई रेस टू आर, तो ये आई रेस टू 4 1 होता है, तो रेस टू यम 1 होगा। 1 लिखा है मैंने आई रेस टू दी पावर रिमाइंडर, तो आई रेस टू एन की जो वैल्यू विच इज वैल्यू इज दैट इज दिस वैल्यू सेम थिंग एज आई रेस टू दी रिमाइंडर वैल्यू। इफ रिमाइंडर एग्जिस्ट एंड इफ रिमाइंडर इज 0, तो ओनली क्या होगा आई रेस टू 4 रेस टू एम, रिमाइंडर इज 0, तो आई रेस टू एन की वैल्यू 1 होगी। I raised to any power we have to convert in the form of I raised to 4m plus r, r मतलब रिमाइंडर की वैल्यू। इफ रिमाइंडर इज 0, तो I raised to 4 raised to मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो I raised to n का जो सिंप्लीफिकेशन हो गया होगा I raised to the पावर रिमाइंडर। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या है 3 प्लस दिस एज 3 प्लस 2 अपॉन आई। नेक्स्ट टर्म क्या है आई रेस टू 6, तो आई रेस टू 6 को कैसे लिख सकते हैं आई रेस टू पावर 4 मल्टीपल ऑफ 4 इंटू रिमाइंडर एस 2। आई रेस टू 7 को भी कैसे लिख सकते हैं आई रेस टू 4 इंटू रिमाइंडर आई रेस टू 3। नेक्स्ट 1 प्लस आई रेस टू 11 को भी कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 आई रेस टू 4 मल्टीपल 2 दैट इज 8 and remainder is I cube. Okay, in this way. Then this 1 upon I, if there exists a complex I denominator, then we convert it into a real number. और this 1 upon I का जो simplification होता है वो क्या होता है माइनस आई। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ये रियल नंबर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो माइनस आई का इसका कॉन्जुगेट है, तो आई स्क्वायर माइनस आई, दिस माइनस क्या होता है 1 होता है, तो न्यूमरेटर में क्या है रिमेनिंग माइनस आई, तो 1 अपॉन आई का सिंप्लीफिकेशन क्या आता है माइनस आई। तो यहाँ पे दिस 3 प्लस 2 अगर आउटसाइड में देंगे तो क्या होगा 1 अपॉन आई, एंड 1 अपॉन आई का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है माइनस आई, तो डायरेक्टली राइट करेंगे यहाँ माइनस आई। नेक्स्ट आई रेस टू 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की क्या होती है माइनस 1, माइनस टाइम आई रेस टू 4 की 1 होती है, आई क्यूब की क्या होगी आई क्यूब इज माइनस आई, बिकॉज आई क्यूब मतलब क्या है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू आई मतलब माइनस आई। ठीक है, तो इंटू 1 प्लस टाइम आई रेस टू 4 1 रेस टू 1 आई क्यूब की क्या है माइनस आई इंटू माइनस आई, तो सिंप्लीफाई करते हैं 3 माइनस 2 आई इंटू यहाँ पे क्या है -1 माइनस माइनस प्लस आई इंटू क्या है 1 माइनस आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई दिस, देन यहाँ पे 3 माइनस 2 आई का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 3 माइनस 2 आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 3 माइनस 2 आई, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आई को, तो 3 इंटू -1 प्लस आई, -2 आई से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस आई को इंटू क्या है रिमेनिंग 1 माइनस आई। फर्स्ट वी टेक दिस टू टर्म्स टू मल्टीप्लाई, तो -3 प्लस 3 आई माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 2 आई एंड दिस -2 आई इंटू आई स्क्वायर माइनस एंड दिस माइनस अगेन प्लस मतलब 2 होगा। ठीक है, तो एडिशन लेंगे 3 आई प्लस 2 आई मतलब 5 आई एंड दिस -3 प्लस 2 मतलब -1 हो जाएगा इंटू नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है रिमेनिंग 1 माइनस आई, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5 आई से 1 को, तो 5 आई माइनस दिस 5 आई इंटू माइनस आई मतलब क्या है आई स्क्वायर माइनस एंड दिस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा एंड ये क्या है -1 होगा। दिस 5 आई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 आई, दिस हैज +5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 यहाँ पे -1 एंड दिस माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस आई, तो टोटल क्या है 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस दिस 5 आई प्लस आई दैट इज 6 आई, तो वी गेट सिंप्लीफिकेशन एज 4 plus 6 I is the simplification of this. Then the next one example is that we have to find the value of the following. Then first one is that is I raised to the power 35. Then how to solve this by using the result of I raised to the power n का रिजल्ट अप्लाई करना है, मतलब ये जो I का पावर है उसे 4 से डिवाइड करना है, तो I raised to power is 35, तो I raised to 35 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है I raised to 4 so it is 32 into the remainder is 3 that is I raised to 3 power 4 into 8 32
इन प्लस दिस 3 मतलब 35। तो i⁴ की वैल्यू 1 है तो 1�8 क्या होगा 1 होगा। यानी i³ की वैल्यू क्या है माइनस आई। ओके, दैट इज i³ मतलब i² इंटू i² माइनस 1 तो माइनस आई इंटू माइनस आई। तो i⁵ इज सिंप्लीफाइड टर्म है वो क्या होगी माइनस आई इज द आंसर। देन फॉर द नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या है i⁻⁴ 888। Okay, then we solve this second one. i⁻⁸888। तो समथिंग डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8। तो i⁻⁴ 2 2 2 दैट इज 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 8 8 8। ओके, दैट इज i⁻⁴ 2 पावर। तो i⁻⁴ की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 एनीथिंग इज 1। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 1 होगा। तो नेक्स्ट वन क्या है i⁻93। तो i⁻93 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा i⁻⁴ 3 इंटू i⁻1 is remain. Okay, i⁻1 is remain. This i⁻4 is 1, so 1⁻23 is 1. That is the remaining value is I. Then for the next क्या है fourth 1/i⁻58। तो 1/i⁻58 डिवाइड करेंगे 4 से तो डिनोमिनेटर को इस डिवाइड करते हैं मतलब दिस टर्म को एंड देन आफ्टर दैट वी सिंप्लीफाई। फर्स्ट वी राइट हियर i⁻58 को डिवाइड करेंगे तो i⁻4 इंटू दैट इज रिमेन इज i²। i⁻4 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंटू रिमाइंडर इज i²। देन दिस 1/i⁻4 इज 1 1/anything is 1 तो रिमाइंडर क्या है i²। तो i² मतलब -1 तो 1/-1 दैट इज सिंप्लीफाइड टर्म इज -1। तो लास्ट वन क्या है अगेन सेम थिंग i⁻10। तो either take this term at the denominator। तो फिफ्थ क्या है 1/, we take this at the denominator 888 and same thing result we have find here। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा तो 1/, डिनोमिनेटर की टर्म कैसे लिखनी है i⁻4 इंटू 2 2 2 तो इसका सिंप्लीफिकेशन 1 होता है तो 1/1 क्या होगा 1 होगा। इन दिस वे वी फाइंड i⁻any पावर बाय यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ i⁻n पावर का फॉर्मूला यूज करना है मतलब 4 से डिवाइड करना है एंड व्हाट एवर द रिमाइंडर टेक i⁻this रिमाइंडर वैल्यू। तो नेक्स्ट भी सिंप्लीफाई करना है i⁻n पावर के फॉर्म में है तो 4 से डिवाइड करेंगे वट एवर विल द रिमाइंडर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है i⁻49 प्लस i⁻68 प्लस i⁻89 प्लस i⁻110। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो i⁻4 दैट इज इफ वी डिवाइड दिस बाय 4 4 से डिवाइड करेंगे तो i⁻4 क्वोशंट में क्या होगा 1 2 एंड रिमाइंडर क्या है 12 इंटू 4 इज 48 इंटू रिमाइंडर इज i⁻1 पावर होगा। द नेक्स्ट क्या है i⁻4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 इंटू 7 दैट इज 17 इंटू 4 इज 68 प्लस टाइम i⁻4 से डिवाइड करेंगे 89 को तो 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 2 is 8 and remainder is 1 i⁻1 प्लस टाइम दिस नेक्स्ट टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो i⁻4 क्वोशंट क्या होगा 4 to 8 इंटू रिमाइंडर इज हियर 3 मतलब 30 तो 4 इंटू 7 इज 28 रिमाइंडर क्या है i²। i² इज रिमाइंडर तो सिंप्लीफाई करते हैं i⁻4 1 है तो इस होल टर्म इज 1 मतलब i इज रिमेन। नेक्स्ट क्या होगा i⁻4 1 है तो होल टर्म क्या होगी 1 ही होगी प्लस सेकंड क्या है i⁻4 1 है इंटू क्या है 1 दी i तो नेक्स्ट टर्म i⁻4 इज 1 तो रिमेनिंग क्या है i² -1 है इंटू -1 तो कैंसिल आउट करते हैं प्लस माइनस रिमेनिंग वैल्यू इज 2i। Therefore, here we get the purely imaginary number. Its real part is 0. There is something next क्या example है इसका solution फाइंड आउट करते हैं
I plus I square plus I cube plus I raised to 4. Okay, simple one. I directly write I square की वैल्यू -1 होगी. यार I cube है, I cube की क्या होगी? I square into I, मतलब यार I cube है तो I square into I. I raised to power 4 है तो I square into I square. ठीक है, तो फर्स्ट I -1 है, I square माइनस एंड दिस I माइनस I. ये क्या होगी? I raised to 4 का 1 होता है. तो कैंसिल आउट करते हैं, प्लस माइनस दिस ऑल टर्म्स गेट कैंसिल. तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? 0 होता है. तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, 11, 12 एज वेल एज 8 नंबर का क्वेश्चन. Question number 8, this 10, 11 and 12. These questions are depending on I raised to the power, and all these questions we have solved already in last video. That is the complex number, power of I raised to n का जो power है उसका जो वीडियो है लास्ट का, उसमें already these 4 questions solve किए. तो we start the next question, that is question number 13 start करते हैं. तो next question है उसका जो आंसर है we have to show that which is a real number 2a. Then we have to justify this answer, whatever we get, either it is 2 or not. Okay, then just here what we are given 1 plus I raised to the power 14 plus I raised to 18 plus I raised to 22. तो समथिंग I raised to power के फॉर्म में तो 4 से डिवाइड करना है. Then 1 plus I raised to 4. This 4 into 3 is 12. Remainder is here 2I square. Then here also 18, मतलब I raised to 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 4 16. Remainder क्या है? 2a. तो into I square. सेम थिंग यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो I raised to 4 क्वोशिएंट 5 होगा और रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा. मतलब 20, रिमाइंडर इज 2. तो 1 प्लस ए 12 I raised to 4 की वैल्यू 1 इंटू क्या है? I square क्या है? -1 प्लस ये भी क्या है? I raised to 4 1 तो इंटू I square की वैल्यू क्या है? -1 प्लस ये भी नेक्स्ट क्या है? 1 इंटू I square है मतलब -1. तो कैंसिल करते हैं टर्म पॉजिटिव नेगेटिव. ये रिमेन क्या है? -2 मतलब इज अ रियल नंबर बिकॉज और रिमाइंडर पार्ट इज 0, मतलब इट इज अ प्योरली रियल नंबर एंड इट इज 2. Okay, -2 that is a real number. We have to show that it is a real number 2. तो यहाँ पे क्या शो दैट करना है? We have to prove that 1 plus I raised to power 4 into 1 plus 1 upon I raised to 4 is equal to 16. तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. क्या है लेफ्ट हैंड में? 1 plus I raised to power 4 into 1 plus 1 upon I raised to power 4. Then 1 upon I मतलब क्या? माइनस आई से भी डिनोट कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे. तो क्या होगा? 1 प्लस आई रेज टू 4. ये अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई रेज टू पावर 4. दिस एज 1 प्लस आई रेज टू पावर 4. यहाँ पे भी क्या है? 1 प्लस आई रेज टू पावर 4. यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? आई रेज टू 4 1 होता है. We know that this. Okay, we directly substitute as 1 and ये क्या है remaining 1 plus I, total power is 8. तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 plus I स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. 1 plus I स्क्वायर क्या होता है? 1 plus I स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a plus b का स्क्वायर 1 plus 2I plus I स्क्वायर इज माइनस प्लस माइनस गेट कैंसिल. रिमेन इज 2I. तो 1 plus I स्क्वायर इज 2I. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू दैट इज 2I रेज़ टू पावर 4. तो क्या होगा? 2 रेज़ टू 4 into I raised to 4. I raised to 4 is 1. 2 raised to 4 क्या है? 16. तो क्या है? We get is equal to 16. That is the right hand side. मतलब left hand is equal to right hand. Then in next video we take the remaining questions of this exercise 1.1. Then if you like this video, like करें, share करें and subscribe करें. Thank you.